So, hello Prepsters, Jai Hind. This is the second part of my previous video. In the previous video, as you have seen, I have given you the strategy to clear NDA written, that is of maths. But in this video, I will give you about the general ability test, the strategy, the PDFs and all the things which you have to know to cracking the NDA written. So in this video, I will firstly give you the number of questions that come and the number of attempts you have to make to successfully clear the JT part. So number of questions is 150. You will get 150 minutes and you will get 150 minutes, 4 marks plus 4 for correct answer, and 1.33 will be deducted for the wrong answer. For the correct answer you will get plus 4, and for the wrong answer your marks will be deducted by 1.33. So you have to be very clear and very sure about marking the question, because in the NDA lag exam where competition is very much, you have to be very sure, because losing 1.33 marks is like a hell for you, because you are thinking about that institution where mistakes are not there. So you have to be very clear about marking the answers. So let's come to the strategy part. So आपको पता चल गया होगा कि 150 मिनट्स होते हैं, 150 क्वेश्चंस प्लस 4 और माइनस 1.33. सो सबसे पहले इसमें होता है इंग्लिश. इसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, और अगर 200 मार्क्स का अगर 4 के मल्टीप्लाई करा जाता है तो 200 मार्क्स, 4 marks for each question, and so total marks will be 200 marks. And in this what will come? Vocab comes, vocabulary, and number 2 idioms, spotting the error, can come, and number 4 is paragraph reading. Number 5 is vocab हो गया, idioms हो गया, spotting the error, paragraph reading. Number 5 is arranging the sentence, arranging words to make a sentence, arranging word to make sentences. So this all come in the English part of the NDA question. So my strategy to clear this is, I have started preparing vocabulary. I started for the idioms, I cover the paragraph reading, and I cover the this arranging word to make sentences. So but ये spotting the error मैंने एकदम आखिरी में करा था, और इसके मैंने कुछ ही क्वेश्चन करे थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं. अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें कुछ भी है तो आप उसको सबसे पहले करिएगा, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको सबसे आखिरी में करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं. अगर आपने इस पे 35 to 40 क्वेश्चन भी कर लिए, वो मोर देन इनफ है आपकी अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो मैंने आपको बता दिया कि दीज टॉपिक्स में भी इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनते हैं. कभी कभार ईडियम्स हट जाता है तो और सारे आते हैं, स्पॉटिंग द एरर हट जाता है तो और सारे आते हैं. स्पॉटिंग द एरर इन सब में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ईडियम्स होता है और स्पॉटिंग द एरर्स होता है, ईडियम्स और स्पॉटिंग द एरर्स. तो आपको ध्यान में रखकर चलेगा कि आपको कौन सा अच्छे से करना है. तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पता होने चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने चूज कर लीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या आता है, और उसी को और अच्छा करने में लग जाइए. चलिए देखते हैं अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. दूसरा पार्ट होता है आपका जीएस का पार्ट, दैट इज जनरल साइंस, दैट इज जीएस. जीएटी में 2 पार्ट हो गए आपके, पहला क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जीएस हो गया. जीएटी में 2 पार्ट, इंग्लिश और जीएस. तो जीएस में सबसे पहला क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ भी नहीं आता है, इसमें केवल कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो अगर आपको मतलब चैप्टर अच्छे से समझ में आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन मी। इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन you will not face any difficulty in cracking this physics chemistry bio, but if you're from non-science then you have to study for these chapters for the physics chemistry bio. And next will be the history part. In GS 100 questions are there because 50 questions are in English and 150 question in total, so left questions will be 100 which will be from GS. So history will comprise of number 1 world history, number 2 will be the Indian history, and Indian history will comprise of ancient, medieval, and the modern. Now comes geography, which will be again of world, Indian, and then last but not the least पॉलिटी। उसके बाद भी एक और टॉपिक है जो कि होगी केवल इंडियन, और इसके बाद है अब करंट अफेयर्स। अब आपका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है किसमें, जीएटी गैट पोर्शन में, दैट इज जीएटी पोर्शन। इसमें आपको मॉडर्न, मिडिवल और एशियन में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं कि ये आपका प्रेसिडेंस रहनी चाहिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिकॉज मॉडर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री इन एनडीए गैट। फिर पहले मॉडर्न होता है, फिर मिडिवल होता है, फिर एशियंट होता है। मॉडर्न का सबसे ज्यादा कवर पार्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा पार्ट मॉडर्न का कवर होता है, फिर मिडिवल, फिर एशियंट, एंड वर्ल्ड विल बी इक्विवेलेंट फ्रॉम द मिडिवल। मतलब जितनी मिडिवल की इंपॉर्टेंस है इंडियन में उतनी वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 3 रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्हीं 3 रेवोल्यूशन से आता है। क्या? रशियन रेवोल्यूशन, American Revolution and the French Revolution. These 3 revolutions cover the most part of the world history, and this is very important as the medieval history. Means medieval history and world history are congruent. So you can leave the Asian history. My strategy is that I left the Asian history and I covered the modern history, the medieval history, and the world history in depth. You have to cover this in depth, and then the geography. That is world and Indian history. World geography and the Indian geography. In the Indian geography you have rivers, mountains, मतलब physical features बोल सकते हैं इसको पूरा, physical feature, and then मतलब physical और political पूरा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सब कवर मैंने केवल लूसेंट पढ़ के किया था, और लूसेंट के बजाय मैंने पीडीएफ पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे पीडीएफ्स हैं जो एकदम कट टू द पॉइंट टू पॉइंट रिलेटेड इसमें नॉलेज देते हैं। मतलब हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और पॉलिटी में, इन तीनों के मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं जो सारा कोर्स पूरा करते हैं और एकदम रेलेवेंट है इंडिया के लिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ यू वांट दैट पीडीएफ्स यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल give you an assurance that I will give you the PDFs of this history, geography and polity. If you want, then you can comment down in the comment box. मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैंने पहले लूसेंट से पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने लूसेंट से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ से उसकी मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ी। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ने से क्या हुआ, मेरा प्रीवियस ईयर भी अच्छे से हुआ और मैंने इसमें अच्छा स्कोर भी किया। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए, क्योंकि ज़्यादा में जाने से अच्छा है कि आप टू द पॉइंट जो एनडीए रिलेटेड है वो पढ़ें, ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, जो मुझे फ़ायदा भी करा। फिर करंट अफेयर्स के लिए तो आपका न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनडीए, बिकॉज न्यूज़पेपर विल एनहांस योर वोकैबुलरी, विल एनहांस योर ग्रामर
and overall it will enhance your English. And English is a major part in the SSB also, and it will also increase your general awareness. So जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये आप सब इंपॉर्टेंट है आपकी एसएसबी में भी और एनडीए रिटेन में भी. एनडीए रिटेन में तो आपको डायरेक्ट इसमें मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और इंग्लिश का वोकैब और ग्रामर आपका कवर हो जाएगा. स्पॉटिंग द एरर, ग्रामर और करंट अफेयर्स आपका एनडीए रिटेन के लिए हो जाएगा. और एसएसबी के लिए अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके या अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करके एनडीए रिटेन आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन तभी आपका एसएसबी बचता है. उस एसएसबी को निकालने के लिए आपको जनरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. मतलब आपको जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में क्या चल रहा है, उसकी आउटकम, अपने व्यूज, ये सब देने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी ने मुझे भी फायदा किया, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताऊं, जैसे कि एसएसबी में बहुत सारे लोग जा सके और अपना टैलेंट वहां दिखा सके. सो इफ यू like this video, then you can share it and subscribe my channel. And in the next video, I assure you that I will make the 5-day process of the SSB easier for you, as I have lived that process and I have a deep insight of that process. And if you want that PDF, as I told you, you can comment down in the comment box and I will give you in my next video. So until then, keep liking my channel and Jai Hind.